Hi guys, we are waiting for Kunwar Singh to join us today. What's his Hi Arshu. Hi Rahul. We're waiting for this one Mr. Kunwar Singh Kuntal from Rajasthan. Hi Gaurav. Hi Zeel. We're waiting for one Kuntal Kunwar Singh. Hi, What's sir. happening, Jam? In the center? Just living the new normal, sir. Living the new normal, Bapre. The dude hasn't got a mask on. Fine him 1,000 rupees. ले ले उससे 1,000 रुपए ले ले 1,000 रुपए ले ले उससे. Hello, I'm away from them and I'm in my premises, so Social distancing. Social stay, distancing. stay away. How is it going, sir? All good, buddy. Yeah, I'm waiting for this guy, Kunwar Singh. He has some health issues and he wanted to talk to me. So, yeah, he's been trying something and he wants to share his experience. All right. So how this thing works? मतलब कोई आपको ऐसे कॉल कर ऐसा अपॉइंटमेंट लेता है सर? They approach you on Instagram, social media. Yeah, they approach me on Instagram, Facebook, whatever. And then Mm-hmm. they tell me what disease they've got. I try to find out whatever I can. And then we experiment for a day where they try to clean up their act, they try to clean up the diet, etc. And they send me pictures of whatever they are eating, how they are eating it, how much they are processing it, whatever. And then when we are on a call, then we discuss about their food choices because many people think that they've improved their diet, but actually much hasn't changed. Like with this guy, let me just check out. Give me 1 second. Now, so he should be joining Yeah. us any second now. Cool. What So happened? disconnect, right? And anyway, yeah, I wanted to talk to you about some students also. So a lot of students have been contacting me, and there are many who are telling me that they have motivation issues. कि अभी CAT join तो कर लिया है, लेकिन CAT करना चाहिए कि नहीं, CAT हमसे हो पाएगा कि नहीं, या कैसे हो पाएगा, etc., etc. So that's what they're asking. Then there are, of course, the usual questions about English. So English के बहुत सारे questions है.
एंड देन देयर आर अ फ्यू स्टूडेंट्स हु आर ट्राइंग टू लर्न अ फॉरेन लैंग्वेज, जापानीज, कोरियन वगैरह, तो उसके बारे में भी पूछ रहे हैं कि कैसे फॉरेन लैंग्वेज प्रैक्टिस मोटिवेशन कैसे मिलेगा. So then, because so many of them have the same kind of questions, I've asked them all to come on Insta Live at 6. Whoever can come. जिनको कुछ और काम है वो मैं एपिसोड रिकॉर्ड करके रख दूंगा और वो लोग बाद में देख सकते हैं. सही है. We can plan something. Because so many of them have the same doubts, and it's actually motivation is a big problem during this lockdown and all these things, because they don't have their usual crowd, usual campus, usual parties वगैरह, वो सब usual नहीं हो रहा, इसलिए उनका usual पढ़ने का भी नहीं हो रहा basically. राइट. लाइक कि कुछ नॉर्मल नहीं है तो फिर ये भी हम क्यों करें, मतलब पार्टी तो करने नहीं वाले, तो फिर पढ़ के फायदा क्या है, पार्टी होने नहीं वाली तो. एंड वी कैन एक्चुअली सी दिस ट्रेंड. ये आ ही रहा है. ये आपके पास तो डायरेक्टली पहुंच गया होगा, लेकिन इतने टाइम से हम ये तो देख ही पा रहे हैं कि ऐसा हो ही रहा है सर. और पता नहीं. हाँ, इसलिए तो जिंदल सर ने वो लेक्चर रखा था. राइट. वो वही बोल रहे हैं कि मोटिवेशन इज अ प्रॉब्लम. मोटिवेशन इज द प्रॉब्लम. What do you tell students? Students ये कैट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा हमसे वगैरह, then what do you tell them? डेफिनेटली सर हो पाएगा. इस टाइम पर मोटिवेशन लैक करना इज वेरी कॉमन, क्योंकि आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो. आप सिर्फ सोशल मीडिया पर ही डिपेंडेंट हो पूरा दिन, एंड यू सी अदर. Naturally, yeah, you are on your screen. Right. You all day long you're on your screen, and you see people, you see stories, you see different stuffs. So you sometimes you feel demotivated, and it is very much normal. It is very much, you can say, that you don't have any solution to this problem right now. You just have to deal with True. it. And अगर उनको मोटिवेशन नहीं आ रहा, you have to create motivation within yourself. You have to do something. You have to wake up early. You have to walk. You have to go cycling. You have to work out to get distracted Read. from this, and to get focused on what you are preparing right now. So ये सब चीजें सर ये फेस तो कर ही रहे हैं लोग. और यहाँ पर अगर कोई मेरे से अगर पूछता है, उसको मैं एड्रेस करने की कोशिश तो करता हूँ. वी कैन हैव ए सेशन रिगार्डिंग द सेम. हम लोग बैठते हैं एक बार. आज तो आपका आई गेस कुछ और एजेंडा है, लेकिन एक दिन हम लोग बैठते हैं अनाउंस करते हुए दैट हाउ टू स्टे फोकस्ड. इस टाइम पे किस तरीके से आप प्रॉब्लम जो फेस कर रहे हो उसको कैसे हम लोग सॉल्व करें, वो सब पर हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं. तो इफ यू आर फ्री एट 6 then join up at 6. इधर इंस्टा पे लाइव करेंगे. And a couple of students are already following a few things. They are waking up early, they are going walking, they are reading, they are listening, they are doing things. And जो वो 2-3 स्टूडेंट्स मैंने उनको भी बोला है कि तुम लोग भी ज्वाइन करना है, अपना एक्सपीरियंस बताना कि तुम लोग 4 बजे भी उठ रहे हो तो तुमको क्या स्ट्रगल्स फील हो रहे हैं, उससे क्या फायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, तुम लोग को ये रेडियो सुनते हो तो उससे फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा, व्हाटएवर, यूट्यूब कम करने से फायदा हो रहा है कि नहीं. सो इफ यू कैन ज्वाइन एट 6 बेस्ट, तो जस्ट टैग अलोंग एट 6. आई वुड रेदर सजेस्ट एक दिन पकड़ते हैं, नॉट टुडे, जिसमें हम लोग इनको बता सके, एक अनाउंसमेंट कर देते हैं दैट एट 6 ऑन सैटरडे विल सिट, एंड इफ यू वांट टू जॉइन अस यू कैन. जिसमें पर्सनली हम उनको बता देते हैं जिन्होंने अप्रोच किया है. पर्सनली मैं उनको बता दूंगा जिन्होंने मुझे अप्रोच किया. वी कैन सिट टुगेदर, एक जैमिंग कर लेते हैं जो यंगस्टर्स को पसंद ही आता है, एक काइंड ऑफ जैमिंग. आई विल इनवाइट नितेश सर एज वेल, वो अपना यूकुलेले लेकर भी आएंगे. वी विल हैव सम फन एज वेल. लेट्स कैच अप. या तो फिर आज जिनको बोल दिया है कुछ 7-8 स्टूडेंट्स है, तो उनको मैं 6 o'clock एड्रेस कर लेता हूँ. 2-3 मल्टीपल थिंग्स है, एंड देन आई थिंक मोर स्टूडेंट्स विल वांट टू ज्वाइन फॉर द नेक्स्ट सेशन इनके फीडबैक से. सो देन वील हैव अनदर बिगर वन, फॉर्मल वन. कूल. साउंड्स गुड, है ना. ये बंदा कहाँ गया यार, इसी के लिए कॉल अरेंज किया और ये बंदा ही गायब है, पता नहीं क्या करे. कॉल करूँ इसको. हाँ, आपको ना मैसेज आया होगा इंस्टाग्राम में. हाँ, आ गया. ओके. हाँ देखो अभी आप, कोई बात नहीं, हो गया ज्वाइन, देख लो. ओके, ही इज विथ अस फाइनली. हाय हैरी, व्हाट्स अप डूड. हाँ कुंवर सिंह जी, कैसे? राम राम. हाँ ठीक है सर. है ना. ओके ठीक है सर. कुंवर सिंह जी, हाँ आपको मतलब आपने बोला आपको कुछ बीमारी नहीं है, तो आप ये सब रॉ फूड वगैरह, अनप्रोसेस्ड फूड, ये सब क्यों खा रहे हैं?
सर मेरी बीमारी का डायग्नोस नहीं हुई है। मेरे क्या तो समस्या चल तकलीफ रही क्या है? है आपको? आपको तकलीफ क्या है? मेरे तकलीफ ये है सर, एक तो खांसी रहती है हल्की, मुझे क्या बुखार आया था 7-8 महीने पहले। बुखार आता रहता तो है और खांसी रहती है? हाँ, बुखार आने के बाद जो खांसी बनी रही, तब से खांसी है 7-8 महीने से। हाँ और वेट लॉस हो गया, 70 किलो से 50 किलो हो गया अभी वेट। ठीक है। और भूख की दिक्कत रहती है, भूख नहीं लगती, उल्टी का सा जी रहता है, उल्टी करने का मन करता है, उल्टी भूख आती नहीं नहीं है। लगती, हाँ। हाँ, ये 3 समस्याएं हैं मेरी। ठीक है, पहला तो आपने बताया बुखार और खांसी रहती है, दूसरा आपको भूख नहीं लगती, और बीच में क्या बताया? खांसी रहती है, भूख नहीं लगती, और वजन कम हो गया। कब से वजन कम वजन होने लगा मतलब आपका? वजन कम होता ही जा रहा है, मतलब घटता ही जा रहा है। अच्छा, आप सिगरेट दारू वगैरह कुछ यूज करते हैं, तम्बाकू वगैरह कुछ? नहीं, कुछ भी नहीं करता। अच्छा ठीक है। और आप कसरत वगैरह बिल्कुल नहीं करते? हाँ, कसरत तो नहीं करता। हाँ, इसलिए भूख तो लगने का फायदा ही नहीं ना, क्योंकि आपके शरीर को अगर जरूरत नहीं है तो वो भूख क्यों लगेगी? अगर भूख कब लगती है? जब शरीर को खाने की जरूरत होती है। खाने की जरूरत कब पड़ती है? जब जो पेट में खाना होता है वो हजम होता है। तो हजम कब होता है? जब हम कसरत करते हैं। तो अगर आप बिल्कुल कसरत नहीं करते तो भूख लगने का प्रॉब्लम होगा। शहरों में भी यही है, गांव में भी यही है। और शहर में क्या होता है कि बच्चों को भूख भी नहीं लगती और बच्चों को नींद भी नहीं आती, और फिर रात तक जागते रहते और फिर अचानक कुछ ना कुछ हैवी खा के सो जाते, कुछ तला हुआ, कुछ पका हुआ, कुछ आइसक्रीम, कुछ कुकी, कुछ सैंडविच, ऐसा कुछ खा के सो जाते तुरंत। सो पहले तो ये बात समझ लीजिए कि जो बंदा कसरत नहीं करता उसको भूख ढंग से लगना मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि आपके शरीर को जरूरत ही नहीं है। तो आपका शरीर कितना खाएगा? आप समझ रहे हैं ना बात को? आप गाड़ी चलाएंगे नहीं तो पेट्रोल जाएगा कहाँ पे? ठीक है, पर सर ये एक खांसी किस वजह से हो रही है फिर? हाँ, वो मैं बताता हूँ आपको। अभी आपने जो कल मुझे जो जो फोटो भेजे ना, वो हम एक एक करके देखते हैं कि आपने क्या क्या खाया। जहां तक मुझे याद है पिछले 24 घंटों में आपने मुझे सारी चीजें खाने के पहले फोटो भेजे। आपने मुझे पहले जो भेजा उसमें 2 सेब और 2 अनार थे। हाँ। एक सेकेंड। हाँ, तो आपने कल जो फोटो भेजे उसमें पहले 2 सेब और 2 अनार के फोटो भेजे आपने, सही है? हाँ सर। हाँ, 2 सेब तो आपने बिना छीले बिना काटे खाए होंगे। हाँ हाँ। हाँ, और अनार को ऑफ कोर्स अनार को छील सकते हैं, और छीलने के बाद उसके जो दाने हैं वो खाए होंगे आपने। हाँ। ठीक है, चलो ये ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं कि ये सख्त खाना हुआ। फिर आपने मुझे दूसरा क्या भेजा था? वो एक आपने मुझे छाछ का फोटो भेजा था। हाँ, सुबह छाछ पी थी आज। हाँ करेक्ट। वो आप छाछ मतलब हो सके ना तो आप पानी के सिवा कुछ मत पियो, क्योंकि आप जो छाछ पी रहे हैं, एक तो आप जो भी चीज चबा नहीं रहे वो चीज आपको हजम ज्यादा अच्छे से होने नहीं वाली, उसका आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। सो आप जो छाछ छाछ पी रहे हो, जूस पी रहे हो, लस्सी पी रहे हो, इसमें से कुछ भी अगर आप पीते हो, सो ये चीज कोई भी आपको ढंग से हजम नहीं होने वाली, क्योंकि उसके अंदर आपका चबाना नहीं होता और आपका थूक नहीं मिलता। और जिस चीज के अंदर थूक नहीं मिलता वो ठीक से हजम नहीं होता। पहले तो आप ये सब पीना छोड़ दो, दूध पीना, छाछ पीना, पानी के सिवा सब कुछ पीना छोड़ दीजिए। एटलीस्ट हफ्ते के 6 दिन आप और 5 या 6 दिन पानी के सिवा कुछ मत पीजिए। और दही, दही सर, दही? कुछ भी नहीं, क्योंकि दही भी आप चबाएंगे कहाँ पे? हाँ। जो भी चीज आप चबा नहीं रहे ना वो एक बार छोड़, आप एक बार ठीक हो जाए फिर सोचेंगे, फिर आपका धीरे धीरे अपन दही दूध मसाला सब चालू कर देंगे। लेकिन पहले आप ठीक नहीं हो जाओ, जब तक हमको प्रॉब्लम पता नहीं चल जाए सॉरी, क्योंकि मैं तो डॉक्टर हूं नहीं। जब तक हमको प्रॉब्लम का पता नहीं चल जाता तब तक आप सारी नरम चीजें छोड़ दीजिए। आप जो भी पानी के सिवा कुछ भी पी रहे वो सब आप पीना छोड़ दीजिए पहले। ठीक है सर। ठीक है, तो आज आपने छाछ और के सिवा और कुछ पिया? फोटो में मुझे आपने छाछ का फोटो भेजा था। आज मैंने सर सुबह दही पी थी पहले तो। हाँ दही का फोटो, हाँ दही का भी फोटो था शायद, या नहीं भेजा था पता नहीं। हाँ हाँ। हाँ ओके, हाँ फिर दही मैंने तो, उसके बाद में हाँ पत्ता गोभी कुछ थोड़ी सी। हाँ, वो तो छोटा सा टुकड़ा आपने पत्ता गोभी खाया, उसको भी हम सख्त मान लेंगे क्योंकि वो एक बड़ा सा टुकड़ा था। हाँ। हो सके तो उससे भी बड़ा टुकड़ा आप इस्तेमाल कीजिए, लेकिन हाँ समझ लिया, अगर ये साइज की आपके पास पत्ता गोभी है, देखिए जैसे मेरे पास है,
तो ये साइज की पत्ता हाँ गोभी है, हाँ। तो इसको आधे से ज्यादा मत काटना। आधा काट दिया इसको, और फिर बाकी का आप आराम से ये इसको भी मैं दांत से तोड़ के ही खा सकता हूँ डायरेक्टली, लेकिन मुझे पता है मैं पूरा एक साथ खाने नहीं वाला, मैं आधा ही खाने वाला हूँ, इसलिए मैं जूठा रख के छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए मैं उसको आधा खा लूंगा, लेकिन आधे से ज्यादा नहीं काटूंगा। फिर बाकी का मैं अपने दांतों से उसको तोड़ के चबा के खाऊंगा। सो आपने जो सेब का फोटो भेजा, अनार का फोटो भेजा, फिर पत्ता गोभी का फोटो भेजा, ये सब चीजें सही है क्योंकि इसमें आपको ठीक से चबाना हुआ। हम्म। पर और आपने कौन सी चीजें भेजी थी? छाछ है, उसका कोई फायदा नहीं है। फिर कुछ और भी फोटो थे, आपको याद है? हाँ भिंडी खाई सर, हाँ सर। नहीं है तो आपने भिंडी सही खाई, आपने पत्ता गोभी सही खाया, आपने सेब और अनार सही खाए। बाकी आपका जो छाछ था, दही था, इसका कोई फायदा नहीं है। और आपने जो एक वो हरे वाले चीज का जो भेजा था फोटो, वो क्या था? वो कद्दू था या तरबूज था, क्या था वो? वो अरे वाला वो तो फूट था सर, ये फूट रहते हैं ना सर, फूट फ्रूट रहेगा बोलते ना, हैं अंदर हमारे से यहाँ पे केसरी तो। था, हाँ। हमारे यहाँ पे फूट बोलते हैं उनको। बड़ी ठीक कचरी है, कचरी रहती है ना, कचरिया उनसे बड़ा वो होता है। ठीक है। वो था। हाँ वो भी सही है, वो भी सही है, उसको भी आपने ज्यादा उसके छोटे टुकड़े मत करना उसके। हाँ आप समझ रहे ना, लेकिन आपने अगर इतना ही खाया है तो आपको या तो गैस या तो उल्टी जैसा रहेगा ही, क्योंकि इतने खाने से तो किसका पेट भरेगा? आपने जो चीजें फोटो भेजी उसके हिसाब से आज फिर आपने सेब खाए वापस। हाँ। हाँ, कल सेब खाए तो थे, अभी आज सर। सेब खाए, दही और छाछ, तो दही छाछ सेब, एक छोटा पत्ता गोभी, दो चार भिंडी, इतने से यार आपका पेट मतलब सिस्टम ठीक नहीं रहेगा। आप ना तो इनफ खा रहे, ना इनफ मेहनत कर रहे। मेहनत ज्यादा करेंगे तो अपने आप खुराक बढ़ जाएगी। सो या सर दोनों चीज आपको करनी पड़ेगी, आपको थोड़ा मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा और खाना भी थोड़ा ज्यादा पड़ेगा आपको। सर अब भी उल्टी का जी हो रहा है मेरा, इतने खाने पर भी। आप वही मुंह करो ना, कड़वा आप सुबह कड़वा हो पहले रहा क्या है। करो। हाँ, आप उठते कितने बजे सुबह? मैं उठता हूँ करीब 5:30 बजे के करीब। परफेक्ट, 5:30 का बहुत अच्छा टाइम है। आप एक काम कीजिए, सुबह 5:30 बजे आप जब उठ जाए ना, तो पहले 1 लीटर पानी पी लीजिए, 3-4 ग्लास। ठीक। ठीक है, आप 3-4 ग्लास पानी पियेंगे, पेट आपका अच्छे से साफ हो जाएगा। फिर आप कम से कम 1 से 1.5 घंटा आप चलने निकल जाइए, मिनिमम 1 से 1.5 घंटा, रुकना नहीं। और फिर आप घर पे आके क्या खाते हो उसका मुझे फोटो भेजना, आपका खाना ज्यादा हो जाएगा, देखना। और उल्टी भी नहीं आएगी क्योंकि आपको अंदर से ही भूख लगी होगी, आपके पेट में अंदर से गर्म हो जाएगा और पेट के अंदर से आवाजें आएगी और आपको भूख लगेगी। अब सर मेरा एक क्वेश्चन ये है, अब मैं एक बार जांच करवा के आऊं कंफर्म करके, जैसे मैं यहाँ से जाऊं जयपुर, तो पहले उस बीमारी का पता लगाऊं, या फिर मैं आपके अनुसार इसी हिसाब से खाना पीना करके या वो बीमारी उसी हिसाब से सही हो जाएगी, या आ, फिर मैं उस हाँ, बीमारी का थोड़ा पता लगाना जरूरी है? हाँ, अभी ऐसा है ना कि क्योंकि मेरे पास डॉक्टरी की डिग्री नहीं है और कानून ये कहता है कि मैं डॉक्टर की सलाह नहीं दे सकता, इसलिए मैं आपको अगर बोलता हूं कि नहीं आप डॉक्टर के पास मत जाओ तो मुझे जेल हो जाएगी। इसलिए अगर आपको डॉक्टर का विचार आया है और अगर आपकी तबीयत खराब है तो कानून ये कहता है मतलब कि आपको डॉक्टर को जाके दिखाई देना चाहिए। आप डॉक्टर को जाके दिखा दो। कितने सारे लोग जाके डॉक्टर को दिखाते हैं तो भी डॉक्टर अल्टीमेटली क्या बोलते हैं? आप थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करो और थोड़ा बहुत आप फाइबर वाला ज्यादा खाओ, आप थोड़ा पका हुआ तला हुआ मिर्ची, नमक शक्कर कम, तेल कम खाओ, और आप थोड़ा सब्जी और फ्रूट ज्यादा खाओ। अगर कोई छोटा मोटा प्रॉब्लम होगा तो यही डॉक्टर बोलेंगे। अगर थोड़ा बड़ा प्रॉब्लम होगा तो भी डॉक्टर यही बोलेंगे। अगर कुछ बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ, कैंसर वैंसर जैसा, तो ऑफकोर्स डॉक्टर फिर बहुत भारी दवाइयां और सर्जरी और उसकी बात करेंगे। मैं आपको बोलूंगा तो, क्योंकि आपने मुझे पूछा इसलिए मैं तो आपको यही बोलूंगा कि हाँ आप डॉक्टर को दिखा दो। पर अल्टीमेटली मैं आप, हाँ। मैं सर दवाई लेने की नहीं कह रहा, मैं हाले मैं ये कहना चाह रहा था कि जो डायग्नोस हो जाए बीमारी, डायग्नोस। हाँ तो करा लो, हाँ करेक्ट। आपको लगता है बीमारी है, मेरे हिसाब से तो अपना अगर डाइट और लाइफस्टाइल सही नहीं है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलते ही रहेंगे।
उसको आप बीमारी का नाम दे या ना दे, उस बीमारी को डॉक्टर पकड़ पाए या ना पकड़ पाए, अगर पकड़ भी ले तो उसका इलाज कर पाए या ना कर पाए। जैसे मेरी बीमारी है तो उसका कोई इलाज ही नहीं है। सो आपकी हाँ। या तो बीमारी हो सकता है पकड़ ही नहीं पाएंगे, जैसे एक मेरा एक और फ्रेंड है जो अभी कॉल पे है, उनको एक के बाद एक डॉक्टर को दिखाते गए, जितने देर डॉक्टर को दिखाते गए उन्होंने अलग अलग प्रॉब्लम बताया, लेकिन कोई भी उनका एक्चुअल प्रॉब्लम नहीं पकड़ पाया। उन्होंने वो पेट वाले डॉक्टर को बताया, गैस्ट्रो स्पेशलिस्ट को, तो उन्होंने लिवर में प्रॉब्लम बताया। उन्होंने हीमेटोलॉजिस्ट को बताया तो उन्होंने बताया कि आपको थैलेसीमिया माइनर है। फिर उन्होंने वो किसी और को, वो ऑर्थोपीडिक को दिखाया तो उन्होंने बोला कि आपका पोस्चर सही नहीं है। लेकिन उनको जो दर्द हो रहा था रीढ़ की हड्डियों में और रिब्स में जो उनको दर्द हो रहा था, वो क्यों हो रहा था वो किसी डॉक्टर को नहीं पता चला। वो जितने डॉक्टर को बताते गए, हर डॉक्टर ने कोई नया प्रॉब्लम बताया, लेकिन हर डॉक्टर ने यही बोला कि ये जो हमने आपका प्रॉब्लम डायग्नोस किया है उसका आपके पेन से कुछ लेना देना नहीं है, आपका पेन क्यों है वो हमें पता ही नहीं है। हो सकता है डॉक्टर को पता ही नहीं चलेगा कि प्रॉब्लम क्या है, हो सकता है डॉक्टर को पता चलेगा और आपको बोलेंगे कि आपका लाइफस्टाइल चेंज करो और दवाई लो या ना लो, या दवाई लेके लाइफस्टाइल चेंज करो। हो सकता है डॉक्टर को पता चल गया बीमारी क्या है लेकिन उसका कोई इलाज नहीं है, जैसे मेरी बीमारी का कोई इलाज नहीं है। कुछ भी पॉसिबल है। आप ये मत सोचना कि बीमारी पक्की डायग्नोज हो ही जाएगी। हो सकता है बीमारी डायग्नोज होगी, हो सकता है नहीं होगी। डायग्नोज हो भी जाएगी तो हो सकता है उसका इलाज होगा, हो सकता है नहीं होगा। इन एनी केस आपको अपनी लाइफस्टाइल तो सही करनी ही है। डॉक्टर को मिलने के बाद करो या पहले करो, आपकी मर्जी है। इससे पहले मैंने सर क्या चक्कर है, 3-4 बार ट्राई करके देख लिया मैं रॉ डाइट पे, 3-4 दिन रॉ रहता हूँ डाइट, तो इसको उसके रॉ बाद डाइट थोड़ी बोलते हैं यार। आप जो खा रहे हो वो रॉ डाइट थोड़ी हुआ। आप छाछ और दही को रॉ डाइट में थोड़ी गिन सकते हो। आपने जो पिछले 24 घंटे में मुझे फोटो भेजे, उसको मैं ये जो करेक्ट डाइट है वो नहीं बोलूंगा। हाँ, रॉ बोल सकते हैं कि उसको पकाया नहीं था, लेकिन उसको मैं करेक्ट डाइट नहीं बोलूंगा। एक सर कॉल आ गया अभी, 1 मिनट। हाँ, कोई बात नहीं। हाँ जी। मैंने क्या है कि ट्राई किया था कई बार, तो क्या है कि समस्या वो 3-4 दिन कर पाता हूँ, उसके बाद वो समस्या बढ़ जाती है, जैसे वो भाई मैं वही उल्टी का बताया ना सब्जी। यार कि आप अगर इनफ एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, अगर आपको शरीर में खाना जल ही नहीं रहा तो नए खाने की जरूरत कहाँ से पड़ेगी। तो अगर आपके शरीर को खाने की जरूरत नहीं और आप खाओगे तो उल्टी होगी, और अल्टीमेटली या तो नहीं खाओगे तो कमजोरी होगी आपको। मैंने बताया ना, वैसे आप कल ट्राई करके देखो अगर आपसे होता है तो। सुबह आप पानी पी लेना ठीक है। 3-4 ग्लास, और हो सके तो एक आध केला या कोई भी एक छोटा सा फ्रूट या एक सेब या कुछ भी खा लेना, और चलने निकल पड़ना। आप मिनिमम 1 से 1.5 घंटा सुबह चलना, और फिर आकर देखना कि आपका खाना पहले से ज्यादा होता है कि नहीं होता है। आज आपने सुबह जितना खाया ठीक। उससे ज्यादा आप कल खा पाते हैं कि नहीं सुबह 8 बजे। आज सुबह मेरे ख्याल से आपने सुबह सबसे पहली चीज कौन सी खाई थी? दही खाया था सबसे पहले। हाँ, दही खाया था। हाँ, है ना। आपका दही से दिन कैसे शुरू हो सकता है? क्योंकि आपके शरीर को एनर्जी की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आपको पता है ना, अगर आप 1.5 घंटा चल के आते तो आपका क्या दही से काम चलता? हाँ, जैसे सर मेहनत तो थोड़ी बहुत कर रहा हूँ 3-4 दिन से। चलता तो हाँ, नहीं हूँ मैं, क्या है कि थोड़ा बहुत वैसे कर रहा हूँ, घास थोड़ी वगैरह बहुत छिल रहा हूँ, मेहनत नहीं चलेगी ना भैया। खाद। चलो नहीं तो भी चलेगा, चलो नहीं तो आप भागो, भागो नहीं तो तेरो। लेकिन कोई भी जो काम हम करते हैं ना, वो थोड़ी देर तक करना पड़ता है। आप 10 मिनट तक, लेट्स से कि मेरे को बर्तन धोने हैं, मैंने 5 मिनट में बर्तन धो दिए, काम खत्म हो गया। फिर मुझे कपड़े धोने हैं, मैंने 10 मिनट में कपड़े धो दिए, काम खत्म हो गया। बट एक साथ जो करना चाहिए, जैसे मैं बता रहा हूँ कि आप 1-1.5 घंटा चलो, तो वो जो एक साथ जो होता है वो बॉडी का मूवमेंट होता ही नहीं ना, उससे एक्चुअली ज्यादा खाना हजम होता है। ठीक है सर। और सर आपने बताया जूस वगैरह गन्ने का, ये भी नहीं पीना है। पी लो कभी गन्ने कभी, का मतलब जूस हफ्ते में 1 आध 2 बार पी लो आप, लेकिन हो सके तो पानी के से। गन्ना खाओ ना, आप चबा चबा के क्यों नहीं खाते गन्ना? बहुत कड़का आते हैं सर, दांतों से नहीं तो चबते मत वो। खाओ। हाँ, तो गन्ना मत खाओ। जूस हफ्ते में 1-2 दिन पी लो, बाकी का दिन कुछ और खाओ ना। अपने ये इतनी सारी सब्जियां हैं, आपने ककड़ियां हैं, ककड़ी नहीं खा रहे आप। फिर और क्या हाँ। आता है? बैंगन आता है, बैंगन नहीं खा रहे। फिर और क्या आता है? वो चोली आती है जो मैं 2 दिन से दिखा रहा हूँ, जो लंबी और पतले लंबे वाले जो आते हैं, जिसके अंदर से दाने निकलते हैं हरा रंग का, उसमें प्रोटीन बहुत होता है, बीन्स होते हैं। वो खाओ, पत्ता गोभी खाओ, टिंडे खाओ, जो छोटे वाले हरे रंग के टिंडे आते हैं वो। तो मतलब कितना सारा, मतलब हो सके उतना आपको कड़क खाना खाना है, जितना हो सके उतना। एक क्वेश्चन और है सर। जी बोलिए। जैसे
ये नट्स रहते हैं, मेवे वगैरह, तो इन गर्मियों में बताते हैं भिगो कर खाने चाहिए। तो अब पता हमको नहीं, ये आप भिगो तो मत कर खाओ उसको काट गर्मियों के में। हाँ, भिगो के खाओ। मतलब मैं तो कच्चा ही खाता हूँ, मैं तो दबा दबा के खाता हूँ, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। मैं इतने महीनों से खा रहा हूँ, पूरे गर्मियों में भी मैंने खाया है, सर्दियों में भी खाता हूँ, मैं तो पूरे साल खाता हूँ। सो मैं भिगो के नहीं खाता। लेकिन अगर आपको पता है, कुछ रिसर्च है, कहीं पे आपने पढ़ा है कि भाई भिगो के खाने से अच्छा है, तो आप मुझे मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, मैं भी सर्च कर सकता हूँ। बाकी बोलने वाले तो सब बोलते हैं, पर अपने हिसाब से रिसर्च करके समझ के करना सही चीज है। तो सर अभी नट्स मुझे खाने हैं कि नहीं खाने? हाँ, खाओ। अगर आपको नट्स खाने हैं तो खाओ ना, कोई बात नहीं। बादाम है, काजू है, किशमिश है, खाओ, अच्छा होगा। पेट भरेगा आपका अच्छा। उससे। लेकिन उससे क्या होगा कि आपका पेट बहुत जल्दी भर जाएगा। अगर आपको थोड़ा, आपका वेट कम हो रहा है तो ड्राई फ्रूट से और कम हो जाएगा, अगर आप बाकी सब नहीं खा रहे। इसलिए मैं ये बोलूंगा कि आप ड्राई फ्रूट खाने के बदले ज्यादा फल, सब्जियां, और हो सके तो मैं जो वो सीड्स का मिक्स बताया है, बीज का मिक्स, जिसमें तिल होता है, सौंफ होता है, मेथी के दाने होते हैं, फिर अलसी के दाने होते हैं। वो पूरा फोटो है, आप इंस्टाग्राम पे देखना, या मैं वापस फोटो भेजूंगा आपको। सो वो जो सीड मिक्स रहता है ना, उससे भी काफी ताकत रहती है, क्योंकि उसमें हर चीज में तेल रहता है। मूंगफली रहती है, उबले हुए चने की दाल रहती है। सो इन सब चीजों में या तो तेल है या तो प्रोटीन है। सो इससे आपको बहुत ताकत रहेगी बेसिकली। उनको सर सभी कच्चे ही करने हैं या फिर जैसे चने तो उबाल के बताया आपने, उसमें उसके अलावा मैं तो बाकी के चने नहीं सभी खाता, कच्चे मैं नहीं रहेंगे? खाता चने, क्योंकि उसको उबालने पड़ते हैं। आपको अच्छे लगते तो आप उबाल के खा लो, लेकिन मैं वही बोल रहा हूँ, आप उबालोगे कोई भी चीज तो आपका चबाना कम हो जाएगा मेरे भाई। आप भूल जाओ ना, आप भूल जाओ कि आपके घर में गैस है। एक दिन आप भूल जाओगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा यार। मतलब उबालना, भिगोना, ये करना, वो करना, मतलब ये सब क्या लगा रखा है। सीधा लेकर खाओ, मौज करो जिंदगी में, और क्या। ठीक है सर। ट्राई करके देखो। आप ये फोटो भेजना अगर चाहो तो चालू रख सकते हो, उससे काफी फायदा होता है कि मैं आपको एग्जैक्टली बता सकता हूँ कि ये सही है, ये गलत है। सो आप कोई भी ठीक चीज है खाने सर। के पहले ऐसा है तो आप फोटो भेज देना। और सर वेट गेन के लिए सबसे बढ़िया क्या रहेगा, क्या ज्यादा खाना पड़ेगा? वेट गेन के लिए हाँ। आपको सख्त चीजें खानी पड़ेगी, क्योंकि उसके अंदर कैलोरी ज्यादा आएगी। आज ही मैंने वो डाइटिशियन से बात की, उन्होंने बताया कि आपको सख्त चीजें ज्यादा खानी है। जैसे आप टमाटर खाएंगे तो टमाटर नरम होता है, तो उससे वेट ज्यादा नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर आप केले खाएंगे, सेब खाएंगे, तो ये सख्त होते हैं, इनसे वेट ज्यादा बढ़ेगा। पत्ता गोभी है, फिर ककड़ी जैसे, या ककड़ी में तो फिर भी पानी होता है ज्यादा, लेकिन आप समझ गए ना, जो भी चीजें सख्त होती है, जितनी आप ज्यादा अच्छा। सख्त चीजें खाएंगे उतना आपको कैलोरीज ज्यादा मिलेगा और आपका वेट बढ़ेगा। मेन तो ये है सर, बीमारी कट जाएगी तो वेट ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा मेरा। एक वो भूख वाली और बीमारी का शांति तो यार वाली। यही है, आपको थोड़ा मेहनत करना पड़े। आप कल सुबह ट्राई तो करके देखो, आप 1.5 घंटा चल पाते हो कि नहीं। गिन के 1.5 घंटा चलना। सुबह उठो, 1 लीटर पानी पियो, एक आध सेब या केला खा लो, और निकल पड़ो पेट साफ करके। कम से कम 1.5 घंटा चल के फिर मुझे बताना कि आप क्या खाते हो उसके बाद। अगर उससे भूख लग जाती है तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया ना, कि हम मेहनत नहीं कर रहे इसलिए भूख नहीं लग रही, और कुछ नहीं। हाँ सर। है ना, ट्राई करके देख लेते ना, एक ही दिन में पता चल जाएगा, 2 दिन में, एक ही दिन में पता वैसे। चलेगा। बल्कि आप 1.5 घंटा हाँ चलो, सर नॉन वैसे। स्टॉप चलना, रुकना मत। 1.5 घंटा चल के देखना आप घर आके ज्यादा खाते हो कि नहीं। अब सर वैसे मुझे आज 3 दिन हो गए इस डाइट पे। हाँ हाँ, पर ठीक है, अब लेकिन ये थोड़ी एज छाछ दही आएगी। मत करो ना। आप छाछ दही कर लोगे, उसमें पानी होता है, आपका पेट भर जाएगा, आप खा ही नहीं पाओगे, फिर कमजोरी लगेगी। हाँ, कमजोरी और तो उल्टी का आती लगेगी हो रहा भैया, है। हाँ यार, आपको दबा दबा के खाना पड़ेगा। थोड़ा मेहनत करो और खाओ, और देखो क्या होता है। कल से ये ट्राई करते हैं अपन। ठीक है सर, आपके अनुसार इस पे और आपका मैं लेता रहूंगा मार्गदर्शन व्हाट्सएप पे सर। हाँ, व्हाट्सएप पे तो है ही ना, आप मुझे फोटो भेजते रहना कि आपने खाया कि नहीं, और कल सुबह आप चलते हैं कि नहीं, कितने बजे से कितने बजे तक, वो मुझे बताना। हाँ हाँ। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट कुंवर सिंह जी। धन्यवाद। धन्यवाद आप, सर। अरे धन्यवाद आपका। आप ठीक हो जाएंगे, टेंशन मत लो, आप ठीक ही हो जाएंगे। और डॉक्टर को आपको दिखा देना, आपकी मन की तसल्ली के लिए तो भी दिखाई दो। अगर कुछ प्रॉब्लम है, भगवान ना करे कुछ प्रॉब्लम है, तो पता चल जाएगा। चलो सर, उसको तो मैं देखता हूँ हाँ, बाद ये में इससे भी पता पता चलेगा चल तो जाएगा क्या। ना, अगर आपको कोई भारी बीमारी है तो कल आप अगर आप 1.5 घंटा चलोगे तो आप बेहोश हो जाओगे। हाँ हाँ। वो भी पता चल जाएगा। ठीक है वेट जो कोई कहता है वजन के हिसाब से तो कहता है कि बहुत बीमार हो गया, वैसे कोई देखता है तो वैसे बीमार नहीं हूँ। आपके सिम्टम्स चेहरे से वैसा तो है नहीं नहीं लगता, पर। आपकी आवाज से आपको लगता नहीं कि आपको कोई ऐसी तरह से थकान है या बीमार है। मेरे ख्याल से पर वही प्रॉब्लम है जिस कारण से आप दुबले पतले, इसलिए क्योंकि आपके पास शायद बहुत सारे पैसे नहीं है बर्गर और आइसक्रीम खाने के लिए।
आप अगर शहर में रह रहे होते ना तो आप बहुत मोटे हो गए होते, क्योंकि यहाँ पे भी वही चीज है कि लोगों को बिल्कुल कसरत नहीं करनी, पूरे दिन बैठे रहते हैं और फिर भूख लगती नहीं है, भूख लगती नहीं है, और रात को सोने के पहले दबा के कुछ भी कचरा खा के सो जाते हैं और फिर मोटे हो जाते हैं। सो फर्क उतना ही है, बाकी सेम प्रॉब्लम है कि अगर आपका बॉडी यूज ही नहीं हो रहा तो आप खाना खा के करोगे क्या, इसलिए भूख ही नहीं लगेगी, और फिर खाओगे नहीं तो नींद नहीं आएगी, इसलिए सीधा रात को कुछ भी कचरा खा के सोने का। ये सबका लाइफस्टाइल ऐसा ही है। हाँ सर। आप जो ट्राई सर जिसने मैं पहले 5-6 महीने पहले जिसने मैं देखा उसको तो पता है कि बीमार है, क्योंकि वो देख कर ही ये कहता है तेरे क्या हो गया भाई, तू तो पहले हष्ट पुष्ट बहुत मोटा था, तेरा तो बिल्कुल ही क्या हो गया, मतलब देख के ही शकल से ये कह देगा वो तो। और तो जो दिखा पहली दो ना, बार अगर देखेगा आपका फिर बहुत भी वेट कम हो गया है, बहुत जल्दी आपका बहुत वेट कम हुआ है, तो आपको डॉक्टर को एक बार दिखाई देना चाहिए। कि अगर आपकी लाइफस्टाइल में और कोई बदलाव नहीं आया, आप जो पहले करते थे वही अभी कर रहे हैं, जो पहले खाते थे वही अभी खा रहे हैं, और तो भी वेट अचानक बहुत कम हो गया, तो आप डॉक्टर को दिखाई दो ना, पता चल जाएगा। देखता हूँ सर इसकी डायग्नोस की आपके हिसाब से चलता हूँ अभी तो मैं। और जैसी आपको ठीक लगे देखूंगा। डायग्नोस करवा लेना चाहिए। लेकिन अगर आप कल ट्राई तो करो, आप इतना चल के देखो आपको भूख ज्यादा लगती है कि नहीं, और मैं 2-3 दिन बोलता हूँ, वो आप करके देखो, अगर उससे हम्म, आपको ताकत और भूख दोनों ज्यादा हो जाती है तो मतलब आपका काम हो गया ना। हाँ मैं देखता हूँ। है ना। मैं भी एक्चुअली वही ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि अब मुझे वो 2-3 दिन पहले किसी ने पूछा था कि ये रॉ डाइट जो आप खा रहे हो उसके ऊपर आप बॉडी बिल्डिंग कर सकते हो कि नहीं, क्योंकि मेरा वजन भी काफी कम हो गया है। सो अभी मुझे हाँ बहुत ज्यादा खाना पड़ता है, मैं पूरे दिन खाते रहता हूँ क्योंकि मुझे वजन बढ़ाना है। सो इन चीजों का वही है कि आपको खाना ज्यादा पड़ता है, क्योंकि अपन प्रोसेस नहीं खा रहे, इसलिए खाना ज्यादा पड़ता है और कुछ नहीं। पर वो भूख आपका लगेगी वेट नहीं। कितना है सर? मेरा वेट 75-80 के बीच में होगा। फिर भी सर आपका वेट सही है, शकल से तो नहीं लगता है इतना वेट, पर सही है फिर भी उस हिसाब से तो। कल मेरे मैं गाल में, सर मेरे पूरे मामा, मेरे नाना, मेरे जो नाना के साइड के सारे सब लोग के गाल अंदर है और आंखें अंदर, इसलिए हमेशा काले ही रहते हैं। पर बाकी मैंने अभी पौना हम्म, घंटा वर्कआउट किया, 50 पुशअप्स किए उसमें, फिर क्या क्या किया, प्लैंक्स किया, पुलअप्स किया। सो अभी आज से मैंने अभी शुरू कर दिया है। सो अभी मैं, इसलिए आज मेरा ज्यादा चलना नहीं हो पाया, पर आज से मैं अब हैवी एक्सरसाइज करना शुरू कर दूंगा, ताकि मुझे और भूख लगेगी और मैं और खाऊंगा तो और कसरत करूंगा और खाऊंगा, और ऐसा करके अपना बॉडी बना लूंगा। सो मेहनत करना तो जरूरी है भैया, मेहनत नहीं करोगे तो हम्म। खाना उल्टी हो जाएगा, हजम ही नहीं होगा। मेरा वेट सर 50 किलो ही हो गया अब 70 से। बाप रे, 50 तो यार बहुत कम है भैया, बहुत कम है। बहुत बहुत कम हो गया सर। बहुत कम हो गया, तो फिर आप डॉक्टर को तो दिखाई दो अगर ऐसा है तो, और वरना कल मैं बोल रहा हूँ आप कल से शुरू कर दो तैयारी करने को। मैं जो जो बोलता हूँ, जब जब बोलता हूँ, आप खाते ही रहना, और या तो आप मेरे को बता के वो फोटो सिर्फ भेज देना, आप खा लेना लेकिन मेरे को फोटो भेज देना, फिर मैं आपको कमेंट देता रहूंगा बाद में। ठीक है सर, है ना, मैं हो सके ट्राई उतना करता हूँ सर सख्त तीन खाना चार है। दिन में। क्या? मैं ट्राई करता हूँ आपके अनुसार, जैसे शनिवार रविवार की छुट्टी रहती है मेरे यहाँ पे ऑफिस हाँ की, हाँ हाँ तो मैं डायग्नोस कराने जाऊंगा शनिवार रविवार को जाऊंगा। हाँ, तब तक ठीक मैं है। आपके हिसाब से एक बार ट्राई करके देख लेता हूँ। ट्राई कर लो ना, आज तो बुधवार हुआ ना, गुरु शुक्र 2 दिन तो आप ट्राई करके देखो। आपको मेहनत ज्यादा करनी है, और मेरे हिसाब से आप मेहनत ज्यादा करोगे, थकान ज्यादा होगी, तो भूख ज्यादा लगेगी और वजन बढ़ जाएगा मेरे हिसाब से। कल से ट्राई करके देख लेते 2 दिन। हाँ सर। है ना, ठीक है कुंतल जी, और कुछ भी काम हो तो आप, बस हम टच में रहेंगे व्हाट्सएप पे, है ना। हाँ सर। ठीक, चलिए, धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद।